This is the candidate spotlight where we will bring you the unfiltered content about your candidates. So today we have Ayush Sahu contesting for the General Secretary Cultural Board. So we will have this interview in two segments. In first segment, we will be asking you questions collected from the campus janta, and in second segment, we will be having the rapid fire, which will test your general knowledge about the same. So, in first segment, your first question was you have said a CBS team will be formed. So, what do you think Radio Z in anchoring the and Radio G is for? Wouldn't it be better if CBS worked in collaboration with Radio G rather than making a separate team? Okay, so anchoring and radio जी is more specific towards the content वाला part. कि वो content वाला part बोले the technicalities we had for if we are shooting any podcast, so if through CBS, जो technicalities है, all the production, all the sound side and all the content also, they have to monitor content क्या आ रहा है, कैसा आ रहा है, and also पूरी technicalities जो भी हैं to form a podcast, to form a रेडियो शो, वो सीबीएस को हैंडल करनी होती है. वहाँ पे एंकर इन द रेडियो जी कुछ पार्ट नहीं लेता है क्योंकि दे डोंट हैव द एक्सपर्टीज दैट द सीबीएस द टीम विल हैव throughout the tenure. Okay, cool. Second, you have said a separate contingent leader will be made, but don't you know maximum two leaders are allowed in contention meets? One is the inter IIT coordinator, and other is the either OC or GS. That's a more that's my not the major part because I know कि दो कंडीजन लीडर ही बैठते हैं मिलकर एंड दो कंडीजन लीडर ही बैठेंगे इंटर आईटी कोऑर्डिनेटर एंड मैं जो फॉर्म कर रहा हूँ कंडीजन लीडर. उसका काम क्या है फ्रॉम द वेरी स्टार्ट ऑफ द टेन्योर जब हमें हमारे फेवरेबल चेंजेस रूल बुक में इम्पोज कराने होते हैं तो कंटीजेंट लीडर विल बी कोऑर्डिनेटिंग विद द कप मेंटर्स जो मैं फॉर्म कर रहा हूँ ऑफ ऑल द कप्स एंड तो उनके साथ वो कोऑर्डिनेट कर रहा होगा एंड वहाँ पे हमारे जो फेवरेबल चेंजेस है रूल बुक चेंजेस जजेस प्रपोज करना वो वाली चीज़ हैंडल कर रहा होगा एंड वो इंटर आईटी कोऑर्डिनेटर का काम है थ्रू आउट द फ्रॉम द वेरी स्टार्ट कि वो पूरा पेपर वर्क हैंडल कर रहा है. द कंटीजेंट लीडर इज मोर स्पेसिफिक टुवर्ड्स हाउ टू विन इंटर आईटी. जो एक होता है फ्रंट एंड परफॉर्मेंस, एक होता है बैक एंड परफॉर्मेंस. फ्रंट एंड परफॉर्मेंस इज जो क्लब देखता है कि हाँ तुम्हें परफॉर्म करना है. बैक एंड परफॉर्मेंस इज कि तुम क्या कंटेंशंस ढूंढ पा रहे हो दूसरी आईटी पर, क्या तुम एक बेटर जो तुम्हारे रूल्स है उस पर तुम बेटर प्ले कर रहे हो नहीं. तो वो बैक एंड परफॉर्मेंस हमारे कप मेंटर्स एंड कंटीजेंट लीडर फोकस कर रहे हैं. मीट्स में इंटर आईटी कोऑर्डिनेटर एंड कंटीजेंट लीडर ही जाएगा. वहाँ पे ओसी को जाने की नीड नहीं होगी क्योंकि उसने थ्रू आउट द प्रिपरेशन हर एक चीज़ नहीं देखी होगी. इसको ज़्यादा कोऑर्डिनेट कर रहा है वो कप मेंटर से. तो दिस वाज माय. But don't you think that OC and GS will have the better knowledge of this cult code, and so they can put more like they can. From the very start of the tenure, OC and General Secretary are busy towards all other things also कि वो उनको events भी कराने हैं, कोई festival community events है वो भी कराने हैं. पर इंटर आईटी हमें separate parallelly practices and preparation करनी है. तो ये चीज़ parallel हो रही होगी and इनको more information contingent leader को ज़्यादा होगी rather than OC और General Secretary. You have written dedicated club room for pallets, but don't you know it has already been initiated and complete research and proposals are made in the ongoing tenure and is waiting for the SAC meet to happen. So, why have you put it in your agenda? If you become the general secretary, wouldn't it be your job to complete the initiated work? Have you done any research regarding Yes, I have researched it through and I'll say कि मेरा एक और एजेंडा भी है जो कि है इंट्रोडक्शन ऑफ ऐसे कोर्सेज इनटू कल्चरल आर्ट्स. ये भी सैक 2023 में प्रपोज्ड है. बट द थिंग इज कि सैक मीटिंग्स होनी नहीं है. तो एज जिमखाना मेंबर एज स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव तो हमारा पहला काम होगा फर्स्ट की सैक मीटिंग्स हो रही है प्रपोजल्स को एक बेटर वे से प्रपोज करके उसको फाइनलाइज करना. तो दैट्स अ मेजर एम. हाँ वहाँ पे वो मैंने रिसर्च करी हुई कि वो एजेंडा प्रपोज है बट हमें एक बेटर वे से भी उसको प्रपोज करना है. एंड सेकेंडली जो हमारा फर्स्ट मेजर एम होना चाहिए एज स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव एंड जिमखाना बॉडी हमें सैक मीटिंग्स करानी है. So it will be more towards the SAC meeting and not towards the. Yes, तो एज स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव हमारा काम वहाँ पे ज़्यादा है कि हम सैक मीटिंग्स को पहले प्रायोरिटी दें उसको कराएं. एंड जो भी फॉर्म बहुत सारी चीज़ें जो प्रपोज्ड है बट वो पास नहीं हुई है तो वो हमारा नेम है वो करना. What was the essay courses kept in cultural art earlier and what was it dropped? Why? Yes. So this was the answer from the administration side. I have talked to Perumal sir regarding that. They said कि ऐसे कोर्सेज पहले भी थे एंड स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट नहीं था बट लास्ट ईयर वी हैड अ सर्वे एंड उसमें हमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था फ्रॉम द स्टूडेंट साइड कि दे वांट कल्चरल आर्ट्स इन ऐसे कोर्सेज. हाँ सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड. इट इज़ ऑल्सो प्रपोज्ड इन सैक 23 एंड द थिंग इज वही कि आगे उस पर कुछ वर्क ऑन नहीं हुआ. तो मेरा एम फर्स्ट यही होगा कि मैं उस पर वर्क ऑन कर रहा हूँ. अगर कोई चीज़ पास है तो मैं उस पर वर्क ऑन कर रहा हूँ एंड नेसेसिटी जो भी चीज़ है वो मैं पूरी करूँगा थ्रू आउट माई टेन्योर. You mentioned encouraging club to participate in external competition. Give me 3 examples where the current cultural board has not done so in the past year.
what would you as a general secretary actively do other than engagement to make this happen? Okay, so first of all, ऐसा नहीं है कि our cultural clubs are not competing in the competitions. They are competing. Let's Talk गया था, दिल्ली गया था for a competition. बट सारे क्लब्स नहीं कर रहे हैं. फॉर इंटर आई टी स्पेसिफिक अगर मैं देखूँ, वहाँ पे हमें काफ़ी प्रिपरेशन की नीड है. हम देखा जाए थ्रू आउट द टेन्योर अच्छे इवेंट्स करा रहे हैं. कैंपस फेसिंग इवेंट्स हमारे काफ़ी अच्छे हैं. बट वी नीड टू लेवल अप, वी नीड टू स्केल अप. उसके लिए हमें इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना है, कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना है. तो फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई टॉक अबाउट द डांस क्लब केडेंस, वो कहीं कॉम्पीट नहीं करते हैं. दे वॉन्ट टू कॉम्पीट. उन्होंने बताया कि दे हैव अ हिप हॉप इंडियन IHL इंडियन हिप हॉप कॉम्पिटिशन. दे वॉन्ट टू पार्टिसिपेट देयर एंड दे वॉन्ट टू गो देयर एंड कम्पीट. स्ट्रीट बैटल्स हो गई, वहाँ पे वो कम्पीट नहीं कर रहे. स्ट्रीट बैटल इज़ अ वेरी आई वुड से जॉनरा जहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा अभी प्रैक्टिस की नीड है. हमारा अभी कल्चर इतना हिप हॉप साइड नहीं है. वो एक चीज़ हो गई. देन कुछ क्लब्स हैं जो अभी भी पार्टिसिपेट करते हैं. फॉर एग्जांपल मॉन्टाज, फॉर एग्जांपल लूमियर, दे पार्टिसिपेट इन द इंडियन फोटोग्राफी कंपटीशन. वो वहाँ पार्टिसिपेट करते हैं. बट ऑल ऑफ द क्लब्स आर नॉट पार्टिसिपेटिंग. वो म्यूजिक क्लब है, वो कहीं पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, वो कम्पीट नहीं कर रहा है. दो हमारे इंटर IT में भी वहाँ पर रैंक्स काफ़ी अच्छी हैं. वी आर सेकेंड इन द बैंड कॉम्पिटिशन, बट वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है. तो वो मुझे इंकरेज करना है फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड मेरा प्लान ऑफ एक्शन यही होगा कि फ्रॉम द वेरी स्टार्ट ऑफ द टेन्योर हम पहले ही लिस्ट डाउन कर रहे होंगे कि हमें फॉर एवरी क्लब कि उन्हें कहाँ पार्टिसिपेट करना है. एंड देन वी विल अकॉर्डिंगली प्लान आउट थिंग्स कि कहाँ पर फंडिंग्स कैसे जानी है, कैसे बजट एलोकेशन होगा एंड कितना हम फंड कर सकते हैं अपने साइड से कि वो लोग जाके कम्पीट कर सकें. पार्टिसिपेशन फीस एंड ऑल ट्रैवलिंग फीस हो, तो वो हम लोग प्लान आउट कर रहे होंगे फ्रॉम द वेरी स्टार्ट. So for the last years, why they are not doing so? वही है कि स्टार्टिंग से प्लान आउट नहीं हो रही थी चीज़ें. कोई कंपटीशन था तो उसके बारे में सोचता. पहले से होती ऐसा नहीं है. ऑफलाइन जो ऑनलाइन कंपटीशन है वहाँ पे वो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं. बट बहुत कम कर रहे हैं, बहुत कम क्लब्स कर रहे हैं, 1 या 2 कर रहे हैं. तो हमें एनकरेज करना है कि सब करें, जिससे सबका एक लेवल है पूरा. So now we have the second segment where we will asking some general knowledge questions. So first, in which year did the amalgamation of Ankarinza and Radioji take place? In which? Year. I'm not sure. I'm not aware. I'll get on this. What is the full form of Speak Maki? It's I'm not totally sure, but I'll say the Society for the Promotion of Indian Cultural Speak Maki. And I'm not sure. I'm totally sure. It's a one. Every word stands for something. I'll get on this. In which year did SAC agree to the planning of the open air theatre? SAC agreed this on 22nd or 23rd. I'm not sure, but 22nd or 23rd. I've read all this. How many modules are there in Alcheringa? Name all of them. Modules? Yeah. Modules? Alcheringa. You are talking about the team. Yeah. What are the heads? There are Basically. there are 18 heads in the team and one convener and one. It was all modules. How many modules? Like teams in Alcheringa. The 18 heads, they were divided into teams. उनकी specific teams होती हैं, like the marketing head, the marketing वाला head, PR and other people. So, correction, modules are events in Alcheringa. Modules are events. So I'm not sure. I'll get on this. Where did SAC advise to explore for the Palette Club room? Where did SAC advise to explore for the Palettes Club room? They have advised to explore food court for that. That was it for your interview. Thank you.